اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 145 کے اندر ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو شخص منافق ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ وَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور کل قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ آج ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ منافق کس کو کہتے ہیں۔ ہم تو ابھی سمجھ گئے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور اس کا کل کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج اگر اس دنیا کے ہم لوگ آپ لوگ ایک میک کی ویوستھا کیجیے، بولتے بولتے تھک جائے دو بار میں، وہ لمبا والا نہیں آتا، وہ دونوں سائڈ میں لگا لیجیے گا، زیادہ خرچ نہیں، آپ لوگ بہت خرچ کر دی مسجد میں، لیکن اس کا بھی تھوڑا خیال کر کے دونوں سائڈ میں دو کو لگا لیجیے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو بتا دیا ہے کہ منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کہاں؟ جہنم میں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ منافق کہتے کس کو ہیں؟ کیا ہم اور آپ اس منافق میں سے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں جن کا نام قرآن میں لیا گیا ہے، جن کا نام حدیث میں آیا ہے؟ عزیز دوستو، صحیح بخاری حدیث نمبر 33 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کے لوگوں کو منافق کا نام دیا جائے گا۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب آدمی بات کرے تو اپنی باتوں میں جھوٹ بولے۔ ہم لوگ جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو جھوٹ سے بچنا ہے، اس لیے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم منافق ہوں گے، اور منافق ہوں گے تو ہم سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم میں۔ عزیز دوستو، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب آدمی بات کرے تو آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولے، اور ہم لوگ یقیناً بولتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، اور جب آدمی ایک دوسرے سے وعدہ کرے تو اس وعدے میں وہ بے وفائی کرے۔ آپ ہمیں فون کیے کہ مولوی صاحب آپ کو مسجد میں خطبہ دینے کے لیے آنا ہے، مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ ہاں 12:30 بجے ہم مسجد پہنچ جائیں گے اور خطبہ دیں گے، آپ سے وعدہ کر لیا، آپ انتظار میں، مولوی صاحب آ رہے ہیں، پتہ چلا ہم دوسری مسجد چلے گئے، یہاں نہیں آئے۔ آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کیے کہ نہیں کیے؟ عزیز دوستو، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ منافق کی 3 قسم کے لوگوں میں سے دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تو آپ اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کیجئے، ایسا نہیں کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی جا سکے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب آپ کے پاس کسی چیز کی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ گھر کی دیکھ ریکھ کیجئے، ہم باہر پیسہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اس بیوی امانت میں خیانت کر دیتے ہیں۔ کیا خیانت کرتے ہیں؟ فلاں صاحب سے ہم زنا کر لیے، امانت رکھے گئے، آ کے دیکھ رہے کہ خیانت ہو گئی۔ عزیز دوستو، مثال کے لیے میں آپ کو سمجھا دیا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ امانت میں خیانت کس کو کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، آج سماج کے اندر جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کچھ فرق پڑتا نہیں ہے، تصور بھی نہیں کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، صحیح مسلم حدیث نمبر 2607 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
अलैकुम बिस्सिद्क फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह। के लोगों सच्चाई को लाजिम पकड़ लो, हमेशा सच बोला करो। अलैकुम बिस्सिद्क फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, अगर आप सच बोलते हैं तो आप सच बोलने की वजह से आप नेकी का काम कर रहे हैं, आप नेकी की तरफ जा रहे हैं। व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह, और आपकी सच बोलने की वजह से आप नेकी की तरफ जा रहे हैं, और नेकी की तरफ जाने की वजह से आप जन्नत में जा रहे हैं। अलैकुम बिस्सिद्क फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह व मा यज़ालु रजुलु यस्दुक़ु व यतहर्रा सिद्क़ हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक़न। कि आदमी अगर बराबर सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, किसी के सामने झूठ नहीं बोलता है और कोशिश करता है कि हमेशा सच बोले, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ लिखा जाता है कि फलां साहब सच्चा है। समाज के अंदर अगर किसी का नाम लिख दिया जाए, ये हाफिज साहब हैं, ये मौलवी साहब हैं, ये हाजी साहब हैं, अंदर से बहुत खुश होते हैं। आप तो हमें कह रहे हैं ना मौलवी साहब, हम बहुत अच्छे हैं इसीलिए ना मौलवी साहब कह रहे हैं, हम हज करके आए इसीलिए ना हाजी साहब कह रहे हैं, हम कुरान को हिफ्ज़ किए इसलिए हाफिज साहब कह रहे हैं हमें अजीज दोस्तों। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ लिखा जाता है रजिस्टर में, आपका फला फला बंदा सच्चा है अल्लाह तबारक व तआला। व इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर। के लोगों झूठ बात कहने से बचा करो, एक दूसरे से जब बात करो तो झूठ ना बोलो। फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर, अगर आप झूठ बात बोलते हैं, एक दूसरे से झूठ बात करते हैं, तो आप फिस्क व फुजूर हो जाते हैं, आप फासिक हो जाते हैं, आप गुनाहगार हो जाते हैं। और आपके गुनाहगार होने की वजह से आप कब्र में सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे अजीज दोस्तों। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और झूठ बात कहने की वजह से आप जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, आप जहन्नम में दाखिल हो रहे हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि ज़बान जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, इसका सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल ना करें अजीज दोस्तों। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार व मा यज़ालु रजुलु यकज़िबु व यतहर्रल किज़्ब हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन। आदमी अगर बराबर झूठ बोलता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज के अंदर कुछ नहीं समझते हैं, झूठ के ऊपर झूठ दिए जा रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है भाई? कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो हमें और आपको चाहिए कि जितने हो सके कोशिश करके सच बात करें अजीज दोस्तों, झूठ से बचे अजीज दोस्तों। अगर आप झूठ बात कहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपका नाम लिखा जाएगा कि फला साहब झूठा आदमी। अजीज दोस्तों, कल क़यामत के दिन लोगों के सामने जब आपका इनाम दिखाया जाएगा, आप अफसोस करते हुए कहेंगे अजीज दोस्तों कि क्या दिखा अल्लाह तबारक व तआला, हम झूठ बोल के आए थे, इसको छुपा देते, लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं अजीज दोस्तों। तो हमें और आपको चाहिए कि झूठ से बचे। और 3 तरह के गुनाह मैं आपको सामने सुनाता हूं। 3 तरह के गुनाह क्या है? बहुत खतरनाक गुनाह है, और इस गुनाह से अगर हम लोग चाहेंगे तो 100% बच सकते हैं, लेकिन 2% मुश्किल से लग रहा है कि बचते हैं ऐसे दोस्तों। तो 3 तरह के गुनाह ऐसे हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे बात नहीं करेंगे, आपकी तरफ नजर उठा के देखेंगे भी नहीं, और आपके गुनाहों को माफ भी नहीं करेंगे, और आपको जहन्नम में डाल देगा ऐसे दोस्तों। 3 गुनाह करने की वजह से। 3 गुनाह क्या है? सही मुस्लिम हदीस नंबर 106 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम। कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन बात नहीं करेंगे। सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला 3 किस्म के लोगों से बात नहीं करेंगे।
वला युज़क्कीहिम, और उनके गुनाहों से उन्हें पाक साफ भी नहीं रखेंगे, वला यंजुर इलैहिम, और उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेंगे, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनको जहन्नम में डाल देंगे। 3 गुनाह करने की वजह से आदमी को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डाल देंगे। अल मुस्बिलु इज़ारहु, पहला नंबर का जो गुनाह है वो है घुट्टी से नीचे, टखने से नीचे पैजामा पहनने वाला, लुंगी पहनने वाला, पैंट पहनने वाला। अगर आप टखने से नीचे पैंट पहनते हैं, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा और आपका गुनाह नहीं होगा, लेकिन हम लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, पहन रहे हैं लथड़ के, घिसेट के चल रहे हैं औरत की तरह से। दोस्तों, तो हमें और आपको चाहिए कि अल मुस्बिल इज़ारहु कि हदीस को सामने रखते हुए टखने से नीचे, जब पैंट पहने तो टखने से ऊपर पहने, और जब लुंगी पहने तो भी टखने से ऊपर, और जब पायजामा पहने तो भी टखने से ऊपर पहने। ऐसे दोस्तों, बहुत आसान काम है, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। बार बार मैं इस चीज के बारे में बताते जा रहा हूं दोस्तों, लेकिन लोग अमल नहीं करते। बहुत आसान काम है, मोड़ दिए चल दिए। अभी हम पहने हुए क्या फर्क पड़ता है, लुंगी पहने उठा के पहनिए, क्या दिक्कत है। अल मुस्बिल इज़ारहु वल मन्नानु लज़ी ला युती शयअन इल्ला मन्नहु, दूसरी किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे भी अल्लाह तबारक व तआला बात नहीं करेंगे। उनमें से दूसरा आदमी कौन होगा, अल मुनफिकु सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िब वल मन्नानु लज़ी ला युती शयअन इल्ला मन्नहु, कि दूसरा आदमी वो होगा जो बिजनेस करते हुए, अपना कारोबार चलाते हुए आदमी से झूठ बात कहे। अजीज दोस्तों, यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं। भाई एक साड़ी खरीद के लाया हूं 500 रुपया में, मिसाल के तौर में आपको बता रहा हूं, और इस 500 रुपया में हम साड़ी खरीद के आपसे मैं 600 रुपया बेचूंगा या 700 रुपया में बेचूंगा या 800 रुपया में, ये मेरी मन की बात है। लेकिन समाज के अंदर होता क्या है, कहते हैं देखिए भाई इसको हम 550 में खरीद के लाए हैं ना, 600 से कम में नहीं बेचेंगे। खरीद के लाए 500 में, कह रहे हैं कि 550 में खरीद के लाए, बेचेंगे 600 में। आप बस जितना में खरीद के लाइए, मत बोलिए आगे सामने वाले को, आप ये बोलिए कि भाई 600 से कम में हम नहीं बेचेंगे। क्या जरूरी है कि 500 में लाए और बोल दिए 550 में खरीद के लाए 600 में बेचेंगे, कोई फायदा तो नहीं है ऐसे दोस्तों। तो झूठी बात कह करके अपने बिजनेस चलाने वालों से भी कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बात नहीं करेंगे, उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेंगे, उनके गुनाह को भी माफ नहीं करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। वल मन्नानु लज़ी ला युती शयअन इल्ला मन्नहु, एहसान करके एहसान जतलाने वाला। अजीज दोस्तों, हम कल गरीब थे, हमें आप 500 रुपया देके अमीर बनाए, 50,000 देके, कुछ भी हो सकता है, 500 रुपया देके चलाए। हम जब पैसा वाले हो गए, आप भी हमसे मांगना है मौलवी साहब आप भी हमें 500 रुपये दे दीजिए कुछ दिन के लिए। हम बोले देखिए भाई मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, आपको देके चला कि अब इतना बड़ा कि आज मांगने हैं तो बोल रहे हैं पैसा नहीं है, हमरे चलते ना बड़ा हुए। तो एहसान करके एहसान जतलाने वालों से भी कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बात नहीं करेंगे। अजीज दोस्तों, 7-8 मिनट टाइम है, और एक सही बुखारी की हदीस में आपको सुनाता हूँ, हदीस नंबर 1240। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के कुछ हुकूक आपके सामने बयान कर रहे हैं कि जब एक मुसलमान है तो दूसरे मुसलमान के ऊपर भी उसके कुछ हक है, कुछ हुकूक हैं, वो एक मुसलमान को अदा करना होगा। अजीज दोस्तों, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर 5 हुकूक है। उनमें से पहला क्या है, इसी में फंस जाएंगे बहुत सारे लोग। हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर 5 हुकूक हैं। पहला हक क्या है, रद्दुस सलाम, सलाम देना, सलाम का जवाब देना। बहुत सारे लोग चल दिए सलाम करते ही नहीं है। आप ये मत समझिए कि हम मौलवी साहब है तो आपको मैं कह रहा हूं कि हमको सलाम कीजिए।
यानी कोई जरूरी नहीं कि मौलवी साहब से ही आप मिलिए तो सलाम कीजिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर हक है कि आप जब भी उसके सामने जाइए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा कि आप उसके सामने से गुजर जाइए। दोस्तों, सलाम की तरह हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक है रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज। आपके गांव घर में अगर कोई बीमार पड़े हैं आप उसको देखने के लिए जाइए। अजीज दोस्तों, ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक है। अगर आप किसी बीमार आदमी को देखने के लिए जाते हैं बहुत बड़ा सवाब है। अजीज दोस्तों, अगर आप सुबह के वक्त किसी मरीज के घर में जाते हैं उसके हाल चाल पूछने के लिए, कैसे हैं भाईजान, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बीमार दिया है। बहुत सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बीमार देता है। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहा है। परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप अगर सुबह के वक्त किसी बीमार आदमी की इयादत करने के लिए जाते हैं तो सुबह से लेकर के शाम तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला से रहमत की दुआ करते हैं। कितना मिनट का काम है, 5 मिनट में गए, आपको देख के आ गए, आपकी तबीयत ठीक है नहीं है, सुनने में आएगा आप बहुत सीरियस हैं, चले गए देख लिए। सुबह के वक्त अगर आपको देखने के लिए कोई गया है शाम होने तक 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला से आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, और शाम के वक्त अगर आप जाते हैं किसी बीमार आदमी की इयादत करने के लिए, उसको देखने के लिए, सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज व इत्तिबाइल जनाइज। समाज के अंदर होता क्या है कि घर के पड़ोसी में जहां से हैं सो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं। एक साहब को मैं जुमा के दिन पकड़ लिया, लमसम 12 बज रहा था, 11:30 मान लीजिए, कैदा लेके, जिसको बंगाली में कैदा बोलते हैं, उसको लेके वो घास काटने जा रहा है। हम उसको बोले इतना टाइम में तुम इधर जा रहे हो, किधर जाना चाहिए? इधर का मतलब मस्जिद जाना चाहिए। बोले मौलवी साहब हम पाक साहब नहीं है। अब देखिए, मुसलमान में नाम लिखा करके फर्ज नमाज तो छोड़िए, 5 वक्त की नमाज जुमा पढ़ने की लाजिम नहीं। आसी दोस्तों, तो रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज व इत्तिबाइल जनाइज, हमें और आपको बताना है कि जब आप मुसलमान हैं आपका दूसरे मुसलमान के ऊपर भी हक है कि आप उसके जनाजे में शरीक हो। यासी दोस्तों, आप जनाजे में शरीक होते हैं तो आपको उहुद पहाड़ के बराबर आपको सवाब देगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज व इत्तिबाइल जनाइज व इजाबतुद दावा, इसमें भी टाल मटोल वाली बात है। 4 नंबर वाला, 4 नंबर वाला आप ध्यान से सुनिए। आजी दोस्तों, गांव के अंदर कोई दावत दिया आपको, फट से चल दिए, पूछे भी नहीं। क्यों नहीं पूछे? कुछ गोश्त मिल जाएगा खाने के लिए, तो आपके घर में बन रहा है। दोस्तों, हमें और आपको अगर कोई दावत देता है तो मौलवी साहब तो खुतबा में कहते हैं कि मुसलमान का हक है कि दावत में जाना चाहिए। अगर कोई आपको दावत दे तो कबूल करना चाहिए, ये सही बात है। एक मुसलमान का हक दूसरे मुसलमान के ऊपर है कि दावत दे तो उसके घर जाइए, लेकिन यहाँ लेकिन लगा हुआ है। मान लीजिए मेरे घर में शादी, बड़का बड़का डीजे लाए, बजा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं, नाच गाने सब कुछ करवा रहे हैं। मौलवी साहब को कहा दिए हमारे घर में आकर कल आपको दावत खाना, बराती भी है साथ में, चल दिए, पूछे भी नहीं। इतना सारा काम जो आपके घर में हुआ, आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि आपने जो डीजे बजाया, डांस करवाया, रंग खेला, ये गुनाह का काम किए कि नहीं आप किए? अगर वो आपके सामने इकरार कर लेता है कि भाई साहब जो हुआ हमारे घर में सब गलत काम हुआ है, हम इस बात का इकरार करते हैं कि गुनाह का काम हम किए हैं, तभी आप उसके घर में दावत खाने के लिए जा सकते हैं, नहीं तो हराम हो जाएगा। दोस्तों, आप अगर बिना पूछे उसके घर में दावत खा लेते हैं, अगर वो सही दावत दे रहे हैं जिसमें गुनाह का काम उसने नहीं किया है, तो आप बिना झिझक जाइए उसके घर में दावत खा जाइए। लेकिन ऐसी हरकत में आप उसको बिना इकरार कराए उसके घर नहीं जा सकते। ऐसे दोस्तों, कुछ लोग इसमें अमल हैं, लेकिन अक्सरियत इसमें बेअमल हैं। बस कुछ खाने मिल जाएगा, चल दिए, खा लेते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं है कि वो पूछे, गैर मौलवियों के लिए भी है कि आपको दावत दे
तो आप हाँ भरिए, लेकिन इस बात के साथ कि आप जो फला फला काम किए हैं, गुनाह का काम किए हैं कि नहीं है। व तशमीतुल आतिश, 5वां नंबर वाला जो हक है ये भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसमें तो और लोग अमल नहीं करते हैं। मान लीजिए हमें छींक आया तो हम क्या कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब सुन रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए जानते ही नहीं बहुत सारे लोग। यरहमुकल्लाह हो। आप जब मेरे सामने हमें छींकते हुए देखे, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो आप भी यरहमुकल्लाह कहिए अजीज दोस्तों। फिर हम क्या कहेंगे? यहदिकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। अजीज दोस्तों, 3 तरह की दुआ, छींकने वाले को 2 दुआ और सुनने वाले को 1 दुआ कहना होगा। अजीज दोस्तों, ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक है। अजीज दोस्तों, वक्त खत्म हो गया है और बात और बहुत सारी लंबी थी। आप लोग मैक का जुगाड़ लगा लीजिए, बहुत परेशानी होती है। अजीज दोस्तों, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सच बोलने की तौफीक दे। आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा